देखिए ये आपकी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज प्रैक्टिस टाइम. The first is your MCQ question. The first one is this is not a kind of खरीफ crop. तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से आपको जो खरीफ क्रॉप नहीं है उस पर टिक करना है. ओके, सो wheat, maize, बाजरा और सोयाबीन. तो योर आंसर इज wheat. सभी बच्चे wheat पर टिक करेंगे. ओके, next is nitrogen deficiency of soil can be removed by manuring, broadcasting, transplantation or applying urea. So everyone will take on applying urea. This is correct answer. BHC and malathions are pesticides, insecticides, fungicides और weedicides. तो सही बच्चे pesticides पर क्लिक करेंगे, सॉरी टिक करेंगे. Fourth one is which chemical method is used to prevent the rust of wheat in the crop? Pesticides, rodenticides, fungicides and herbicides. So you all will take on pesticides. Pesticides is the correct answer. Now fifth one, the process of separating grains and husk from the harvested crop is called threshing, winnowing, harvesting or irrigation. So this process is called threshing. Threshing is a process जिसमें grains को husk से separate किया जाता है. Okay? He is pioneer of green revolution in India. So who is he? Swaminathan. Okay? आप फिर भी स्वामीनाथन पर टिक करेंगे. Then next is the common weedicide are 2,4-D, MCPA, Buchler and all of these. तो आप सब इस पे टिक करेंगे 2,4-D. This is correct. This insect is used to eliminate prickly pear from the crop field. Coineal, weevil, beetle and aphid. Coineal is your answer. Okay? Done all of you? Next comes your Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. fill in the blanks. Cultivation of plants for food is called agriculture. All of you will write agriculture here. Okay? Agriculture. Next is your plowing dash the soil and improves dash circulation. The plowing loosens the soil. LOOSEN. Loosens the soil and improve air circulation. Improve air circulation. Okay? Third one is big pieces of soil in the plowed field are called crumbs. 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 Next देखिए क्या है fourth one. The high yielding variety of crops are developed by green revolution. All of you will write green revolution. Green revolution. Fifth is the manure formed by decomposition of plant and animal waste is called compost. Compost. Okay? Fill in the blanks. हो गए सबके? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. अदरवाइज वैसे मैं आपको ये PDF ग्रुप में सेंड करेंगे आपको. Yes, ma'am. नेक्स्ट देखिए ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स मतलब जो स्टेटमेंट ट्रू है उसे ट्रू लिखना है, जो स्टेटमेंट गलत है उसको फॉल्स लिखना है. ओके? क्रॉप रोटेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग नाइट्रोजन ऑफ द सॉइल. दिस इज ट्रू. एवरीवन विल राइट ट्रू. ओके? नेक्स्ट इज sandy soil needs less water to grow plants. This is false. Write false here. Okay. Third one is
A machine called combine is used for winnowing. This statement is false. Right, false here. Excessive use of fertilizers enhance nitrogen content of soil. This statement is also false. Next comes your fifth one. Kharif crops need more water than Rabi crops. This statement is true. Right, true here. Okay? Done all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. आंसर इन वन वर्ड। Yes, बस ma'am. आंसर इन वन वर्ड मतलब आपको बताया हुआ है कि कुछ आपको लाइंस दी हुई हैं, उससे मिलते जुलते जो भी प्रोसेस है जो भी है उसका नाम आपको लिखना है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज केमिकल कंपाउंड्स। Next comes your answer in one word. Okay. The first is your chemical compound used to increase soil fertility are called fertilizers. सही बच्चे इसमें fertilizers लिखेंगे। Fertilizers. Next, leaving the field for rest of the one after harvesting one crops. What is this process called? बताइए आंसर। 8th क्लास क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को जिसमें 1 साल के लिए फील्ड को ऐसे छोड़ दिया जाता है? Now third one is raising crop by providing organic manure and applying biological control. मैं हमें पता है सही ऑर्गेनिक फार्मिंग No, manuring. Manuring. Fourth one, overflooding of field causing accumulation of water for long is called waterlogging. Called waterlogging. Fifth one देखिए, animal that attacks the damaged crop are called pest. Pest. So 8th class, your second chapter is microorganism. Microorganism का मतलब क्या होता है? Microorganism जो हमारे छोटे छोटे particles हमारे हर चीज में present होते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे हमारे कहीं पे भी present हो, कोई चाहे वो हमारे लिए harmful हो, क्या बोलते हैं? Microorganisms बोले जाते हैं। इस चैप्टर में जो हम डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म आर द टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट आर विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। तो सब बच्चों को ये पता होगा कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे वहाँ पे लिड होती है, इसके बाद माइक्रोस्कोप लगा होता है और आप इस लिड के ऊपर कोई भी सब्सटेंस रख कर उसमें क्या देख सकते हो कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, क्या है। तो वो जो ऐसा जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। तो जितने भी आपके ये बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंगस होती है, जितनी भी ये चीज़ें हैं, इन सब में क्या प्रेजेंट है? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। और इन सब की जो काउंटिंग हम जो पूरा ग्रुप जो बोलते हैं हम इसको, पूरे के जो ग्रुप को नाम दिया गया है वो दिया गया है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये आपको कैसे आपको आप तक पहुंचते हैं? ये जो आपको अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कॉमन कोल्ड हो जाता है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो और कॉमन वायरल डिजीजेज हैं जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं ड्यू टू दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हेल्प इन मेकिंग कर्ड।
सभी बच्चों ने सुना होगा जो दही होती है आपकी, वो जो दही बनती है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही हाथ होता है। ठीक है, चीज और बटर और जो भी आपका फ्लेवर दिया जाता है चीज और बटर के अंदर, ये भी किससे दिया जाता है? आपके सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दिया जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबायोटिक पता है ना सभी बच्चों को? एंटीबायोटिक्स जो होती है जो आप कभी कभी खाते हैं जब आपकी बॉडी में या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है किसी भी तरीके से, तो उसको मारने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस लिए यूज करता है? एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही यूज किया जाता है। तो हमने जो आप लोगों ने पढ़ा होगा इन 6 और 7 जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट उनके जो रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में, उसमें क्या होते हैं? आपके बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है? Some bacteria are used in ripening of tea leaves and making coffee. तो कुछ आपके ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो किस लिए यूज किए जाते हैं? जो आपकी चाय की पत्ती होती है उसको उसको निकालने के लिए और कॉफी बनाने के लिए। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरियाज आपके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? स्पॉइल आवर फूड एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग। कई बार क्या होता है अगर आप कुछ भी सड़ा हुआ या खराब खाना खा लेते हो बाय मिस्टेक, तो क्या हो जाता है? इससे आपकी बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग क्या होता है? आपको उल्टी आने लगती है और मतलब खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होता है और फिर स्लाइटली फीवर आ जाता है। तो क्या होता है इससे कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके खाने में एंटर कर गया तो वो क्या करेगा? आपके खाने को खराब कर देगा और उससे क्या हो जाएगा? आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, द डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैस। तो जो आपके डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं। Epidemic is a disease which spread quickly among large number of people. तो एपिडेमिक आपकी एक ऐसी डिजीज है जो बहुत सारे लोगों में ड्यू टू दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड हुई है। ओके, तो जो आपके कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो कैसे आपके एक दूसरे से फैलते हैं? एयर से, वाटर से, फूड से या फिजिकल कॉन्टेक्ट से। कम्युनिकेबल डिजीज आपके ऐसे डिजीज होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में चले जाते हैं। और उनका मतलब क्या होता है? कैसे वो जाते हैं? कोई एक जरिया तो होता होगा जिससे वो एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। तो वो क्या होता है? या तो वो एयर से जाता है कि अगर मान लीजिए आपको बहुत तेज बुखार है या बहुत तेज आपको जुकाम है और आपकी छींकें बंद नहीं हो रही है, तो और अगर आप एयर में छींकते हो तो जो आपके आसपास जो हेल्दी पर्सन होता है, आपके छींकने से उस हेल्दी पर्सन को भी सेम कॉमन कोल्ड 1-2 दिन में आपको दिखाई देगा कि उसे भी जुकाम हो जाता है। तो ये क्या होता है? जो आप स्नीज करते हो, जो आप छींकते हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं आपके अंदर, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं? एयर में मिल जाते हैं और एयर में मिलने से वो हेल्दी पर्सन उसी एयर को ब्रीथ कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया आपके अंदर थे वो बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाते हैं और इससे क्या होता है? उसको भी सेम प्रॉब्लम हो जाती है। वाटर से हो जाता है, कई बार साथ खाना खाने से हो जाता है, और फिजिकल कॉन्टेक्ट जैसे कि आप हैंडशेक करते हो, गले मिलते हो, तो इससे भी कई बार क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, तो न्यूमरस टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर एंड एयर। दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद unaided eyes. Okay, we can only see them with the help of a microscope. These organisms are called microorganism or microbes. तो बहुत सारे आपके ऐसे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में, मिट्टी में, वाटर में, और कहाँ होते हैं? एयर में। तो ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं अनएडेड आइज, मतलब जो आपकी नॉर्मल आंखों से आप इन्हें नहीं देख सकते, जिसे आप अभी एक दूसरे को देख सकते हैं आपस में, इसी तरीके से आप जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की हेल्प पड़ती है, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, और क्या, और उन्हें क्या बोला जा सकता है? माइक्रोब्स। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे फिगर 2.1 में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाए हुए हैं। ओके, तो ये जो स्टडी ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, मतलब जो इंसान, जो भी साइंटिस्ट या जो भी बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, मतलब इनको ढूंढते हैं, इनके बारे में इन पर रिसर्च करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। वेयर जो इनकी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, एंड जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो जो आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, लेट्स सी देम, देखते हैं क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो वो होते हैं आपके वन सेल ऑर्गेनिजम्स, या तो होते हैं वो आइदर आर वन सेल ऑर्गेनिज्म और अ कलेक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो या तो वो होगा आपका किसी एक सेल का बना हुआ, या होगा वो कलेक्शन ऑफ यूनिडिफरेंशिएटेड सेल्स। ओके, तो ये जो ये आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखिए, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर विजिबल विद ओनली माइक्रोस्कोप। सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही वो आपको क्या करेंगे? आपको दिखाई देंगे। ओके, देन they occur in air, water, soil and in on the body of the living organism। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके एयर में, वाटर में, सॉइल में, और कभी कभी कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट इन द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ड्राउट्स इन हॉट वाटर, स्प्रिंग एज वेल एज डेजर्ट एंड मार्शियल लैंड्स। तो ये जितने भी एरियाज का नाम आपको इस पॉइंट में दिया गया है, वेयर इज फोर्थ पॉइंट में, तो इन सारी जगह पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। ओके, during unfavorable conditions the microorganism encloses themselves in a hard resistant covering called cyst। तो क्या होता है जब इनके लिए कंडीशन क्या होती है? एप्रोप्रिएट नहीं होती है। जब इनके लिए कंडीशन क्या होती है? एप्रोप्रिएट नहीं होती है, तो ये क्या करते हैं? अपने आप को एक हार्ड कवरिंग के अंदर क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? एक हार्ड कवरिंग आ जाएगी, जिससे आपके जो इसमें जो इसकी लाइफ है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये जो आउटर कवरिंग होती है इसे क्या बोलते हैं हम? सिस्ट, CYST। When the environmental conditions become favorable, these cyst structures and microorganisms come out and multiply। तो फिर क्या होता है? जब आपकी कंडीशन क्या हो जाती है? फेवरेबल हो जाती है, अकॉर्डिंग टू द जो आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म की नीड है उसके हिसाब से आपकी जब फेवरेबल हो जाती है, तो क्या होता है? फिर माइक्रोऑर्गेनिज्म के ऊपर जो ये सिस्ट स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है? ये हट जाता है। ठीक है, हट जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो बाहर आ जाता है और स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, मतलब एक के अपने दो बनाने लगता है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। तो आपके ये चार तरीके के आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल टू अस इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, सम आर हार्मफुल व्हाइल कॉजेस डिजीज। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? आपके हेल्पफुल होते हैं, क्या करते हैं? आपको एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्रीज में हेल्प करते हैं। वेयरएज कुछ जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? आपके लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, जो आपको डिजीजेस फैलाते हैं।